So we are doing chapter devotional path. First of all, recap of the topic what we have done yesterday. So I want to revise again ताकि आप in touch हो जाओ फिर उस topic के साथ. So yesterday we have read that how there were so many rituals were there in Hinduism, and due to Sanskrit, it was not easy for the people to read the religious text. So that's why. And there was also caste discrimination. So people wanted such religion where they could get equality, and that the religious text of the religion that could should be in the common language of the people. And in those days, Buddhism and Jainism were spreading. There was equality, and both priests in both the Gautam Buddha and Mahavir Jain, both preached in common language of the people. That's why people joined Buddhism and Jainism. They turned towards Buddhism and Jainism and left Hinduism. But in those days also, Bhakti movement was spreading from the South India. And in different parts of India, people worship Lord Shiv, Vishnu, and Durga, Mata Durga. And in different parts of the country, these deities were known by different names. भगवान के हर जगह डिफरेंट नेम ही होते हैं, वो है तो एक ही है बट उसके नेम डिफरेंट होते हैं, यू नो इट वेरी वेल. So these deities were known by different names in different parts of the country. So there were some people who believed in the true devotional towards God. जो कहते थे कि भगवान के प्रति अगर आपकी ट्रू डिवोशन है ना तो वो आपको अपने आप मिल जाएगा. तो ट्रू डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, तो ये भी एक रास्ता उन्होंने बताया. नेक्स्ट फिर हम कहेंगे कि अलवर्स एंड नायनार्स आ रहे थे. अलवर्स एंड नायनार्स जो थे, अलवर्स वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड नायनार्स दे वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिव. अलवर्स एंड नायनार्स कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे बिकॉज देयर मेंबर्स वर फ्रॉम लो कास्ट. अनटचेबल्स जो लोग थे ये इनके मेंबर्स थे. कुलाइयार, पनर्स, ये सब कास्ट के लोग इनके मेंबर्स थे. तो अलवर्स एंड नायनार्स जो थे इन्होंने पोएम्स कंपोज की इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल, है ना. फिर हैगियोग्राफीज लिखी गई. किसके बारे में लिखी गई हैगियोग्राफीज? लाइव्स ऑफ द सेंट, सेंट की लाइफ के बारे में ये टेक्स्ट लिखे गए. और वही हैगियोग्राफीज बाद में क्या बन गई? मेन सोर्स ऑफ नॉलेज about the Bhakti tradition. Main source of knowledge for the historians about Bhakti tradition यही hagiographies. अगर आपको पूछा जाए what do you mean by hagiographies, तो आपने कहना writing of saints lives, writings of saints lives. Now is that clear? इतना हमने कल पढ़ा था. And today we are going to start with philosophy and bhakti. Topic philosophy and bhakti. तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, he was one of the most influential philosopher of India. अब इस आदि शंकराचार्य का बर्थ जो है ना वो केरला में इन 8th सेंचुरी हुआ. आदि शंकराचार्य एक ग्रेट फिलोसफर थे एंड इनका बर्थ कहाँ पे हुआ? केरला में इन 8th सेंचुरी. अब आदि शंकराचार्य ने एडवोकेटेड Advaita or doctrine of the oneness of individual soul and supreme God. Adi Shankaracharya advocated Advaita. Advaita आपने याद रखना है. इसमें आप कह सकते हो doctrine of oneness of individual soul and supreme God. He considered that world, जो जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, वर्ल्ड अराउंड us to be an illusion or माया. उन्होंने कहा ये एक माया जाल है. जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं ना ये एक माया जाल है. This world is an illusion or माया. World around us to be an illusion or माया. माया पता है ना, माया जाल है. उन्होंने कहा ये वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं. He preached the path of knowledge to understand the true nature of Brahma and attain salvation. अब आदि शंकराचार्य एक ग्रेट फिलोसोफर, बर्थ कहाँ पे हुआ? केरला में. कौन इन 8th सेंचुरी. आदि शंकराचार्य एडवोकेटेड Advaita. Advaita means doctrine of oneness of individual soul and the supreme God. Oneness of individual soul and the supreme God.
आदि शंकराचार्य ने कहा कि ये जो वर्ल्ड है दैट इज मायाजाल, वर्ल्ड मायाजाल है, एंड ही प्रीच्ड, उन्होंने रिनंसिएशन पे जोर दिया कि वर्ल्ड को त्याग दो, दुनिया को छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ, एंड अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड अटेन साल्वेशन। साल्वेशन होता है मुक्ति पाना। उन्होंने कहा अगर आपने मुक्ति पाना है ना, तो उन्होंने रिनंसिएशन पे जोर दिया और साथ में ये बात कही कि अडॉप्ट द, उन्होंने कहा वो पाथ अपनाओ जिसमें आपको नॉलेज, आपको ट्रू नॉलेज, लेट स्ट्रेस ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण। तो आपने आदि शंकराचार्य के लिए क्या याद रखना है कि एक ग्रेट फिलोसफर, केरला में बर्थ हुआ 8th सेंचुरी, क्योंकि आपको बच्चा किसी के बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट डू नो अबाउट आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य वाज ग्रेट फिलोसफर, बर्थ कहाँ पे हुआ, केरला में, 8th सेंचुरी, एंड देन यू विल टेल दैट आदि शंकराचार्य एडवोकेटेड अद्वैता, डॉक्ट्राइन ऑफ, आपने इसमें अद्वैता में बताना है डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। आदि शंकराचार्य ने कहा कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मायाजाल, और उन्होंने ही कंसीडर्ड, आदि शंकराचार्य प्रीच्ड द पाथ ऑफ ट्रू नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड टू अटेन साल्वेशन। उन्होंने कहा अगर हमें मुक्ति पानी है ना, टू अटेन साल्वेशन वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण। और उन्होंने कहा इस माया जाल से हमें दूर रहना है। माया जाल, वर्ल्ड इज फुल ऑफ माया जाल, ये वर्ल्ड माया जाल है, इससे हमें दूर रहना है। रिनंसिएशन पे उन्होंने जोर दिया कि इस संसार को छोड़ के आप ट्रू नॉलेज की सर्च में आप खोज करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण टू अटेन साल्वेशन। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण। तो ये किसने, किसके आइडियाज थे, आदि शंकराचार्य। Now next I'm going to read about Ramanuj. Ramanuj born in Tamil Nadu. मैं फिर लर्न करा दूंगी आदि शंकराचार्य। यू जैसे कि आपको अलवर्स एंड नाइनर्स आई थिंक लर्न हो चुके होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आदि शंकराचार्य, आपको पेपर में ये नहीं सोचना कि ये बैक पे क्वेश्चंस नहीं है, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू नो अबाउट आदि शंकराचार्य, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट रामानुज। रामानुज, आदि शंकराचार्य का बर्थ हुआ था केरला में, रामानुज का बर्थ कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु। रामानुज बोर्न इन तमिलनाडु इन 11th सेंचुरी। आदि शंकराचार्य का आपने किया केरला 8th सेंचुरी, रामानुज तमिलनाडु इन 11th सेंचुरी। एंड आदि रामानुज जो थे ना डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स। तो अपने आप क्लियर है कि किसको मानते होंगे, भगवान विष्णु, ठीक है ना, क्योंकि लॉर्ड विष्णु में बिलीव करते होंगे रामानुज। तो ये किसके डिवोटी थे, लॉर्ड विष्णु के, क्योंकि ये डीपली इन्फ्लुएंस किससे थे, ना तो नायनार से, अलवर से, अलवर से डीपली इन्फ्लुएंस थे। इट मींस ही वाज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन, अब इन्होंने मुक्ति पाने का क्या रास्ता बताया, जैसे कि आदि शंकराचार्य ने कहा था टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण, और ये माया जाल है वर्ल्ड, और उन्होंने रिनंसिएशन पे जोर दिया था, ठीक है ना, आदि शंकराचार्य ने। अब व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय रामानुज टू अटेन साल्वेशन, रामानुज ने कौन सा रास्ता बताया टू अटेन साल्वेशन, थ्रू द इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। उन्होंने कहा अगर आपने साल्वेशन मुक्ति पानी है तो आप भगवान विष्णु के ट्रू डिवोटेस बन जाओ, ट्रू लव रखो अपना किसके साथ, टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु। तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि रिनंसिएशन पे जोर दिया, माया जाल बताया वर्ल्ड को, वेयर एज ये जो रामानुज है ही वाज influenced by Alvars, and to attain salvation he told that if we want to attain salvation it was only through the intense devotion to Vishnu. तो he propounded the doctrine of, अब इन्होंने किस पे, आदि शंकराचार्य ने he advocated Advaita, whereas Ramanuj advocated Vishishta Advaita. Vishishta Advaita. Listen again, Ramanuj advocated Vishishta Advaita, and whereas Adi Shankaracharya Advaita, and Ramanuj Vishishta Advaita, and
or qualified oneness in that soul even when united with the supreme God remained distinct. Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India. अब आपने अगर रामानुज के बारे में याद करना है तो आपने कहना ही वास रामानुज जो थे इनका बर्थ कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु, इन विच सेंचुरी, इन 11th सेंचुरी। फिर आपने बताना है ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स एंड ही वाज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। ही टोल्ड दैट इफ वी want to attain salvation, he told the method to attain salvation, true devotion towards Lord Vishnu. इन्होंने कहा कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपकी ट्रू डिवोशन किसकी तरफ होनी चाहिए, टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु। अब इन्होंने किस पे स्ट्रेस दी, ही एडवोकेटेड वशिष्ठ आद्विता। ठीक है, आपने पढ़ा रामानुज advocated Vashishth Advaita, whereas you have read Adi Shankaracharya advocated Advaita. अब इन्होंने वशिष्ठ आद्विता को एडवोकेट किया, ही एडवोकेटेड वशिष्ठ आद्विता। और साथ में इन्होंने कहा ये इनका जो न्यू आइडिया था ना भक्ति का, वो नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो रहा था। आइडिया ऑफ आदि रामानुज वाज स्प्रेडिंग इन द आइडिया ऑफ भक्ति दैट वाज गिवन बाय रामानुज वाज स्प्रेडिंग इन नॉर्थ इंडिया। इनका आइडिया नॉर्थ इंडिया में अब स्प्रेड हो रहा था। किसका आइडियाज नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के स्प्रेड हो रहे थे, रामानुज। तो रामानुज का आइडिया जो दैट ही वाज गिवन टू अटेन साल्वेशन एंड आइडिया ऑफ भक्ति दैट वर स्प्रेडिंग इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के लोग रामानुज के आइडियाज को फॉलो कर रहे थे। हम लोग नॉर्थ इंडिया में ही रहते हैं। ठीक है, अब आगे भास्वन एंड विराशवाइज्म। भास्वन एंड विराशवाइज्म, अब इसमें आपने बताना है विराशवेरा मूवमेंट लेड बाय भास्वन। विराशवेरा एक मूवमेंट है दैट वाज स्टार्टेड बाय भास्वन। विराशवेरा Virashva is the movement. Virashva is the movement that was led by, who led the Virashva movement? Bhaswan. Bhaswan led the Virashva movement with his companions. साथ में उनके और companions थे, उनके और साथ में आप कह सकते हो कि साथी जो थे उनके थे साथ में। कौन कौन? अलमा प्रभु and Akka Mahadevi. Now listen carefully. Bhaswan started the movement. Which movement? Virashva movement. Virashva movement was started by Bhaswan with his companions. Who were the companions of Bhaswan? आपने बताना है, एक तो अलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी। अक्का महादेवी द मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट थी ना, विराशवा मूवमेंट जो थी, दैट वाज begin in Karnataka in the mid 12th century. Virashva movement was कहाँ पे डेवलप हुई? कर्नाटका में। कब? in the mid 12th century. Virashvas जो थे ना argued strongly for the equality. They believed in the equality of human beings and they were against the Brahminical ideas about caste and the treatment of women. ये लोग रिचुअल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। दे वर अगेंस्ट द रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप मींस मूर्ति पूजा। ये लोग ना तो मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, ना ही रिचुअलिज्म में बिलीव करते थे। अब एक मिनट, आपको पूछा जाए व्हाट डू नो अबाउट विराशवा मूवमेंट, अब आपने बताना है। इसी को आप अब चेंज कर लोगे, आप कहोगे विराशवा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन कर्नाटका। ठीक है, फिर आप कहोगे इट वाज लेड बाय भास्वन। इट वाज लेड, Virashva movement was started in Karnataka in mid 12th century. It was started by Bhaswan with his companions Alma Prabhu and Akka Mahadevi. दोनों ही low caste थे। ठीक है, Alma Prabhu and Akka Mahadevi, they didn't। अब अपने आप सोचो, जो अगर मेंबर ही low caste हैं तो क्या ये caste system में believe करेंगे? No, they didn't believe in caste system as Brahmins believed. Brahmins caste system में believe करते थे, but these ये जो लोग थे विराशवा movement वाले, they were against caste discrimination. And they also didn't believe in idol worship. मूर्ति पूजा में भी बिलीव नहीं करते थे। They were against ritualism. They preached the idea of equality. इन्होंने equality पे stress दी। They believed in equality. अब equality में believe करते थे। Listen again, विराशवा movement कहाँ पे start हुई? कर्नाटका में। Who started this movement? Bhaswan. कब start हुई? Mid of 12th century. Bhaswan with his companions. Who were the companions? Alma Prabhu and Akka Mahadevi.
अब ये लोग कैसे थे? They didn't believe in caste system, they preached equality and they didn't believe in ritualism. जैसे कि ब्राह्मण्स रिचुअल्स में बिलीव करते थे, हिंदुइज्म में रिचुअलिज्म में बिलीव किया जाता था. Ritualism means रीति रिवाज. They didn't believe in ritualism and they didn't believe in idol worship. ये मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे. Now is it clear? आपको विराश्वय मूवमेंट अगर लिखना है तो कैन यू राइट? अभी मैंने आज आपको करवाए हैं फिलोसफी एंड भक्ति में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेड अबाउट आदि शंकराचार्य. आदि शंकराचार्य केरला में बर्थ हुआ, 8th सेंचुरी में ग्रेट फिलोसफर थे. ही एडवोकेटेड Advaita and laid stress on doctrine of individual soul with supreme God. And जो आदि शंकराचार्य थे ना, उन्होंने कहा कि दिस वर्ल्ड इज माया जाल. ये वर्ल्ड क्या है? माया जाल है. और इन्होंने he preached the knowledge to understand the true nature of Brahman to attain salvation. He believed in renunciation of the world. ठीक है, ये रिनाउंसिएशन में बिलीव करते थे कि वर्ल्ड को छोड़ दो, ये तो माया जाल है. तो आप ट्रू नॉलेज की सर्च में आप ट्रू नॉलेज को सर्च करो, उसको ट्रू नॉलेज को सर्च करो अगर आप साल्वेशन मुक्ति पाना चाहते हो. तो उधर से रामानुज तमिलनाडु के थे एंड रामानुज का बर्थ तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में हुआ. रामानुज was influenced by the Alvars. It means he was the devotee of Lord Vishnu. He told that if a person wanted to attain salvation, so he must have true devotion towards Lord Vishnu. तो उन्होंने लॉर्ड विष्णु के लिए कहा कि ट्रू डिवोशन होनी चाहिए अगर आप if a person wanted to attain salvation, अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो person must have true devotion towards Lord Vishnu. अब इन्होंने he advocated Vashishta Advaita, and the idea that was given by Ramanuj was spreading in North India. Idea of bhakti that was given by Ramanuj was spreading in North India. अब हमने पढ़ा विराश्वय movement. विराश्वय movement जो थी that was started in Karnataka in the mid 12th century. तो इसमें आपने पढ़ा it was started by a movement. तो किसी ने तो start की होगी. It was started by Bhaswan with his companions. कौन थे उनके companions? अलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी. वुमेन है. अब देखो वुमेन साथ में है तो अपने आप सोचो वुमेन की इक्वालिटी. वुमेन के राइट्स के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई क्योंकि अक्का महादेवी इनके साथ है. अलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी. तो अब यहाँ से आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि प्रीस्ट इक्वालिटी मीन्स इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया. ब्राह्मण्स तो वुमेन को राइट ही नहीं देते थे वेदास या टेक्स्ट पढ़ने का, तो उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया. इन्होंने इक्वालिटी, बिलीव्ड इन इक्वालिटी. ठीक है, इन्होंने इक्वालिटी को प्रीच किया विराश्वय ने. और साथ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे बिकॉज बिलीव्ड इन इक्वालिटी. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, बिलीव्ड इन वांटेड टू गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन. वुमेन को इक्वल राइट्स देना चाहते थे. एंड फिर साथ में आपको कि ये जो विराश्वय थे अगेंस्ट रिचुअलिज्म, रिचुअलिज्म में बिलीव नहीं करते थे एंड डिडंट बिलीव इन आइडल वर्शिप. आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं करते थे. तो विराश्वय मूवमेंट भी आपको आगे होगी. नेक्स्ट महाराष्ट्र के सेंट्स. अब हमने पढ़ने हैं महाराष्ट्र के सेंट्स के बारे में. फ्रॉम 13 to 17th सेंचुरी. अब 13, अब एक मिनट, हम 8th सेंचुरी पढ़ी, फिर हमने 11th सेंचुरी पढ़ी, फिर हमने मिड ऑफ 12th सेंचुरी पढ़ी विराश्वय मूवमेंट. अब हमारे यहाँ 13 to 17 सेंचुरीज की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत से सेंट्स, पोइट्स, बहुत से सेंट्स एंड पोइट्स हुए हैं सिंपल, जिनके सॉन्ग्स इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर द पीपल. महाराष्ट्र के जो सेंट्स थे ना और पोइट्स थे, इनकी सॉन्ग्स ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया हुआ था. पीपल वर इंस्पायर्ड बाय देयर सॉन्ग्स. ये जो पोइट्स थे महाराष्ट्र में, बहुत से सेंट्स एंड पोइट्स आए फ्रॉम 13 to 17th सेंचुरी. अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो माने गए वो कौन थे? जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम. यू हैव टू लर्न दीज सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम. अब ये कहाँ के सेंट्स हैं? महाराष्ट्र के. नाउ लिसन अगेन. In 13 from 13 to 17th century there were various saints became popular in Maharashtra. Various saints, poets that inspired the people of Maharashtra. बहुत से saints and poets आए महाराष्ट्र में जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया. उनमें से जो मोस्ट पॉपुलर थे वो कौन थे? जनेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव. You have to learn these saints of Maharashtra.
ये लोग ज्यादा पॉपुलर हुए थे। एज वेल एज वुमेन लाइक, अब वुमेन भी थी। वुमेन में कौन कौन थे? सकुबाई एंड फैमिली ऑफ चोकामेला, सकुबाई एंड फैमिली ऑफ चोकामेला who belonged to the untouchable। अब अपने आप देखो, यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो रही होगी, अनटचेबल्स भी मेंबर है, वुमेन भी मेंबर्स हैं। इट मींस नॉट दे डोंट बिलीव इन, अपने आप पॉइंट्स बन जाने, अपने आप आपकी लाइंस बन जानी है। दे डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, बिलीव्ड इन जेंडर, दे डोंट बिलीव इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वांटेड टू गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन, क्योंकि वुमेन इनकी मेंबर है। उधर आपने पढ़ा अक्का महादेवी और इधर आप कह रहे हो सकुबाई एंड फैमिली ऑफ चोकामेला, तो ये इनके मेंबर्स थे। इनके साथ में सेंट्स थे, ये भी वुमेन भी पॉपुलर हुई है। महाराष्ट्र के सेंट्स में कौन कौन पॉपुलर हुए? ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकानाथ, नामदेव। और फिर वुमेन भी, कौन सी वुमेन? सकुबाई एंड फैमिली ऑफ चोकामेला who belonged to the untouchable माहिर कास्ट को बिलोंग करते थे, जिसके B.R. अम्बेडकर थे। अब यहाँ पे क्या हुआ? दिस रीजनल ट्रेडिशनल ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। अब ये लोग भी किस पे विश्वास करते थे? इन्होंने जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई हैव टोल्ड यू दैट गॉड्स एंड दैट इज दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भगवान विष्णु को विठल कहा गया है। तो ये किसमें बिलीव करते थे? विठल। They believed in the regional traditional of bhakti focused on Vitthal, a form of Vishnu. Temple in Pandharpur, Vitthal temple in Pandharpur, as well as on the notion of the proposal God residing in the hearts of the people. अब इन्होंने विठल टेम्पल महाराष्ट्र में, जहाँ पे पंधारपुर में है, वो है वैसे किसका? लॉर्ड विष्णु का ही है। विठल फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु है, ठीक है। तो ये लोगों ने, ये जो मैंने महाराष्ट्र के सेंट्स बोले हैं, इन्होंने दे फोकस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, फोकस्ड ऑन द विठल टेम्पल। विठल किसकी फॉर्म है? लॉर्ड विष्णु की। तो आपने ये बताना है। और इनके अकॉर्डिंग के भगवान मंदिरों में नहीं, दिलों में है लोगों के। भगवान जो है उसका घर हमारे हार्ट्स हैं। Now listen again, Maharashtra's 13th to 17th century, various saints became popular in Maharashtra. Out of these, the most popular were Eknath, Namdev, Tukaram, ठीक है, and Janeshwar, and women also Sakubai and family of Chokamela. ये सब पॉपुलर हुए थे। एंड अब अपने आप ही क्लियर है, these people believed in equality and didn't believe in gender discrimination, क्योंकि वुमेन मेंबर है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करेंगे। फिर आपने कहना है कि दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विठल टेम्पल इन पंधारपुर, विठल टेम्पल सच एज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। विठल टेम्पल किसका? विठल टेम्पल में जो भगवान है वो किसकी फॉर्म है? लॉर्ड विष्णु। विठल किसको कहा गया? भगवान विष्णु को ही। तो विठल टेम्पल इन पंधारपुर, एंड साथ में इन्होंने कहा गॉड रिजाइडेड इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। भगवान कहाँ पे रहते हैं? इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। These saints rejected all forms of, अब ये लोग भी, ये जो मैंने नाम बोलने हैं महाराष्ट्र के saints, they don't believe in ritualism, ये भी ritualism में believe नहीं करते थे। They rejected the idea of renunciation। अब इन्होंने renunciation पे renunciation को reject किया। Shankaracharya believed in renunciation, but saints of Maharashtra rejected the idea of renunciation, और इन्होंने कहा कि फैमिली के साथ रहना चाहिए। प्रेफर टू लिव विद फैमिली मेंबर्स, इन्होंने कहा कि हमें जंगलों में नहीं जाना चाहिए घर बार छोड़ के। लिव विद फैमिली मेंबर्स के साथ रहना चाहिए। अर्निंग, अपने लिए खुद अपनी अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन, एक आम इंसान की तरह रहना चाहिए। अर्निंग द लाइवलीहुड फॉर द फैमिली एंड सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड, अगर कोई नीडी है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, ये नहीं कि उठो और जंगलों में चले जाओ। और ये वाले आइडियाज में इन्होंने बिलीव किया। लिसन अगेन, ये जो सेंट थे ना महाराष्ट्र के, इक्वालिटी में बिलीव करते थे, डिडंट बिलीव इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दे वर अगेंस्ट रिचुअलिज्म में बिलीव नहीं करते थे। दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन। अब ये रिनंसिएशन, किसने रिनंसिएशन के आइडिया को प्रीच किया था? आदि शंकराचार्य। एंड हु रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन? सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने क्या किया? कहा कि पर्सन शुड लिव विद फैमिली मेंबर्स।
उसको अपने घर बार छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, अपने फैमिली के लिए अर्निंग करनी चाहिए। ये नहीं है कि उठ के जंगलों में चले जाओ, और घर में ही अगर कोई नीडी है तो आपके आसपास तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी को जरूरत है, आप उसकी पर्सन कोई किसी को कोई दुख, किसी का दुख बांटना चाहिए, शेयरिंग करने से, किसी के दुख बांटने से, इसमें बिलीव करते थे ये। तो एज फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड, अब गुजराती सेंट नरसिंह मेहता जो थे, ही वाज, कौन थे नरसिंह मेहता? गुजराती सेंट नरसिंह मेहता कहते होते थे कि वी शुड शेयर द पेन्स ऑफ अदर्स। तो दे आर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। ये वैष्णव्स थे, वैष्णव्स आपको पता ही है, वेजिटेरियंस, एंड दे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। तो ये आपने महाराष्ट्र के सेंट्स के लिए लर्न करना है। अगर आपको 1 मार्क में पूछा जाए हु वाज नरसिंह मेहता, तो आपने कहना सेंट ऑफ गुजरात। नरसिंह मेहता वाज द सेंट ऑफ गुजरात। अब मैं एक बार महाराष्ट्र के सेंट्स का दोबारा बोलती हूँ। महाराष्ट्र में 13th to 17th century various saints and poets became popular. Out of these, the most popular saints were Janeshwar, Tukanath, Eknath and Namdev. सक्कूबाई, वुमेन की बात करें तो फैमिली ऑफ चोकामेला। अब दीज पीपल, ये जो सेंट्स थे, दे प्रीच्ड इक्वालिटी एंड दे डिडंट बिलीव इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दे डिडंट बिलीव इन रिचुअलिज्म, रिचुअलिज्म में बिलीव नहीं करते थे। दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन दैट वाज प्रीच्ड बाय आदि शंकराचार्य। यहाँ पे नहीं लिखना, मैं आपको बता रही हूँ। they rejected renunciation, they were on the view, अब अपने आप बन जाएगा कि renunciation में believe नहीं किया। मीन्स ये क्या चाहते थे? person should live with family members, earn for the family members and help the person when help the needy persons। फिर आपने कहना नरसिंह मेहता was the गुजराती saint and he was on the view कि जो वैष्णव्स होते हैं ना, they understand the pains of others। वैष्णव्स जो होते हैं, they understand the pains of others and we should share the pains of others। नरसिंह मेहता ने कहा कि हमें दूसरों के दर्द को बांटना चाहिए। We should share the pains of others and Vaishnavas जो होते हैं, they understand the pains of others। So this is about Narasimha Mehta। Who was Narasimha Mehta? He was Gujarati saint। आप till here आज आप इतना ही करते हैं बच्चे, आपको महाराष्ट्र के saints and listen, आज जो आपने नया किया, you have to read that। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिलोसफी एंड भक्ति में आपने पढ़ना है आदि शंकराचार्य, देन अबाउट रामानुज, एंड देन आपको विराश्वइज्म के बारे में पढ़ना है, भास्वन ने और उसके कंपेनियंस के बारे में पढ़ना है, उनके आइडियाज पढ़ने हैं। एंड देन यू हैव टू रीड अबाउट सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, उनके नाम आने चाहिए, और साथ में कौन से आइडियाज को इन्होंने प्रीच किया, किसने रिनंसिएशन की को कहा कि किसने रिनंसिएशन का आइडिया प्रीच किया और किसने रिनंसिएशन के अगेंस्ट कहा कि नहीं वी शुड रिजेक्ट रिनंसिएशन, किसने इसको रिजेक्ट किया, किसने इसको अडॉप्ट किया। यू शुड नो द नेम। तो ये सारा आप जब कर लोगे तो आपके ये इतना सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड देन नरसिंह मेहता, यू शुड नो द नेम एंड हिज एरिया, कौन से एरिया के ये सेंट थे, गुजरात के। यू शुड नो इट वेरी वेल, आपको ये सब कुछ आना चाहिए। आप एंड टुमारो वी विल डू नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज। तो इज इट क्लियर? आपको इतना आज आपने करना है। तो टेक रीडिंग